Assalamu alaikum everyone. I hope you're all well. Um, we'll just start in a few minutes. We'll wait for the rest of the people to join. Um, and let me just check if my audio is clear with the ISEP team. Once we have these small issues covered, then we'll start. Chaji, so we start. Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, this session has primarily been set up to provide some basic understanding of how the CSS exam works, or my main focus would be on trying to answer your questions. क्योंकि मैं अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन तो दे दूंगा, लेकिन आई एम श्योर आप सबके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. I'll try to answer those to the best of my abilities. So we start. सबसे पहले तो ये कि CSS स्टार्ट करने का जो टाइम है, उसकी तैयारी स्टार्ट करने का टाइम है. कुछ लोग पूछते हैं कि शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट इन 6 months बिफोर द एग्ज़ाम. कुछ लोग पूछते हैं कि तैयारी क्या 4 महीने में, 6 महीने में या 10 महीने में हो सकती है या नहीं हो सकती. तो उसके लिए मेरा सबको यही जवाब होता है कि एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट बैकग्राउंड. हमारी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, हमारा डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और हम सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं. एंड इट इज़ ड्यू टू दिस फैक्ट कि हर एक को यही कहता हूँ कि there's no set time that is required to clear the CSS exam. I have some of my batchmates who have cleared the exam after studying for just 4 months, and there are people who have studied for 6 months, and there are people who studied for a year and even more than that. Or sabne mashallah they've performed very well. So it really doesn't depend upon how long you study, because हर एक की अपने background होता है, हर एक की अपनी चैलेंजेस होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है. तो इस वजह से ये कहना कि 6 महीने में तैयारी नहीं हो सकती या 3 महीने में या 1 साल में तैयारी नहीं हो सकती, आई थिंक दैट वुड बी नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं. मेरा अपना एक्सपीरियंस जिस तरह से था कि आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन जून, सो ऑलमोस्ट 6 or 7 months बिफोर द एग्ज़ाम. फॉर मी पर्सनली बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी विच गिव मी एन एज. उसमें नंबर वन तो ये था कि अखबार पढ़ने की हैबिट. आई थिंक जो भी शख्स CSS की तैयारी करने के लिए आता है, उन सबको पता है कि अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड इवन दो इट इज़ अ बिट ऑफ अ क्लीशे, but it is very true. So the number one thing that every one of you should be doing every day is to read the newspaper. आप सब डॉन ज़रूर पढ़ें. आई थिंक हर बंदा यही कहता है, लेकिन डॉन पढ़ने में भी माय एडवाइस वुड बी के डोंट स्टडी द होल पेपर. सिर्फ ऑप एड पे, एडिटोरियल्स पे और जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उस पर फोकस करें. अखबार को पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है if you decide to read the whole paper. So you must read
the newspaper every day and focus on the important parts that I've just highlighted. Okay, that was just one uh, additional piece of information. Back to the way we were going about हमारा जो flow था of the conversation. तो सबसे पहले जो मैंने आपके question answer किया वो ये है कि क्या what is the ideal time to start preparation? So the ideal time to start preparation is now. और it's a marathon, it's not a sprint. It requires a lot of stamina और again जैसा मैंने पहले बोला कि हर इंसान की अपनी strengths और weaknesses होती हैं. So it really depends upon how you utilize your time. It doesn't depend on आपके पास कितना time है, but rather आप उस time को किस तरह से utilize करते हैं. That is what really matters. So my advice to you is अगर आप लोग Feb में अगले साल appear होने वाले हैं तो preparation का time अभी है. अभी तैयारी start कर दें. I think जो initial phase में at least for the first 1 or 2 months in particular आपका focus होना चाहिए on the essay. ऐसे के ऊपर मैं हर एक को ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसे इज़ द की टू द CSS एग्ज़ाम क्योंकि majority of the candidates they are not able to clear the essay exam और essay के बारे में एक challenge ये भी है कि we don't have any particular set of guidelines on what is judged or rather what are the parameters that are required to clear this essay exam. uh, However, having said that, in the past 2 years we have a very important source of information और वो FPSC की वेबसाइट पे मौजूद है और वो है आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट. लास्ट ईयर भी FPSC ने एक एग्जामिनर रिपोर्ट शेयर की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि what are some of the key things or some of the key weaknesses that the examiners of FPSC found while checking the essay exam. तो मेरी आप सबको एडवाइस है कि जो लोग essay की तैयारी शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वो उस एग्जामिनर रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें. FPSC की वेबसाइट पे मौजूद है. उस एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ें और एक बार नहीं उसको 3-4 बार पढ़ें. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और की चीज़ जो आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि उसमें 5 एग्जामिनर्स के अपने अपने ओपिनियंस हैं बट द वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल 5 ऑफ दोज ओपिनियंस वो ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक मैटर्स द मोस्ट. तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और उसमें आप जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेज़ी लिख रहे हैं और जितने मर्जी अच्छे आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अगर आपने टॉपिक को सही से इंटरप्रेट नहीं किया तो फिर आपका ऐसे चाहे बेशक ग्रामेटिकली परफेक्ट हो और उसकी इंग्लिश की क्वालिटी बहुत अच्छी हो यू माइट नॉट पास दैट ऐसे एग्ज़ाम. तो इसीलिए उस एग्जामिनर रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें. आई थिंक दैट इज़ द की एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. a lot of you might be feeling कि ये जो सेशन है हमारा it was supposed to cover the general topics, the general queries and ideas about the exam. लेकिन ये particular piece of information मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि I think a lot of your success depends upon whether you're able to do your essay exam well or not. तो इसलिए ये चीज़ सबको पता होना बहुत ज़रूरी है. So the first thing that you all must be doing today after this session is go to the FPSC website and download that report. वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें and I think that will give you a proper idea of what is required from your essay. बहुत सारे लोग ये गलती करते आए हैं पिछले कुछ सालों में कि वो essay के की रोड मेमोराइजेशन करते हैं. मसला ये आता है कि कई दफ़ा टॉपिक्स को रोड मेमोराइज करने से आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसे मेमोराइज किया है सपोज ऑन ऑन वाटर क्राइसिस तो पेपर में जाके आपकी कोशिश होती है कि जो भी वाटर क्राइसिस का ऐसे नज़र आए उसके अंदर जो आपका मेमोराइज्ड ऐसे है वो लिख दें. और ये गलत अप्रोच है क्योंकि हर टॉपिक का की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. हर टॉपिक की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है. हर टॉपिक को डील करने का तरीका कार मुख्तलिफ है. तो इसीलिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि कभी भी ऐसे मेमोराइज ना करें. ऐसे की प्रैक्टिस ज़रूर करें. टॉपिक्स ज़रूर देखें और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ज़रूर गैदर करें लेकिन टॉपिक को मेमोराइज करना जो है वो बहुत रिस्की अप्रोच है. कुछ लोगों का ऐसे पास हो जाता है बट स्टिल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिस्की अप्रोच एंड नोबडी शुड ट्राई टू मेमोराइज द एसेस. तो हैविंग सेड दैट ऐसे के बारे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो ऐसे के बारे में रहा है वो यही रहा है कि यू नीड टू हैव सम वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश. तो मेरा उसके ऊपर ये रिस्पॉन्स है कि आपकी लैंग्वेज स्पेशली योर वोकैबुलरी डज नॉट नीड टू बी वेरी एडवांस्ड. मेरे अपने एक्सपीरियंस में मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थी.
और ना ही मेरा एक्सप्रेशन कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आई थिंक ऐसे एग्ज़ाम में दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। ऐसे एग्ज़ाम में व्हाट आई थिंक दैट लुकिंग फॉर इज़ कि आपकी लैंग्वेज जो है इट शुड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड ज़रूर करना चाहिए, बट डू नॉट थिंक दैट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव a very complex vocabulary or a very complex sentence structure. So keep your sentences simple. आपकी vocabulary की जो क्वालिटी है वो भी बहुत एडवांस ना हो तो ठीक है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। इट शुड बी ऑफ एन एवरेज क्वालिटी। योर vocabulary इट डजेंट हैव टू बी वेरी एडवांस्ड। एडवांस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो भी बिलीव मी इट डज नॉट पुट यू ऑन अ वेरी on a disadvantage. So don't worry about vocabulary, don't worry about complex sentence structure. The only thing that you should slightly be worried about is the grammar. लेकिन ग्रामर के बारे में भी ये है कि यू डोंट हैव टू मेक श्योर कि आपकी ग्रामर मिस्टेक कोई ना हो। ऑफ कोर्स यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी ग्रामर मिस्टेक्स, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ राइटिंग। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ कि मेक श्योर कि पहले 2-3 पेजेस और जो आपकी आउटलाइंस हैं उनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद यू कैन ऑब्वियसली यू कांट मेक श्योर कि आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक सिरे से ही ना हो। तो उसमें थोड़ा-सा शायद आपको रूम ऑफ थोड़ा मार्जिन मिल जाए, लेकिन आउटलाइन में और शुरू के 2-3 पेजेस में आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। आई थिंक दैट इज़ द की हियर। सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखें कि इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज़ व्हाट मेक्स और ब्रेक्स योर एसे। आपको वोकैबुलरी याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक श्योर कि जो टॉपिक है उसको आप सही से समझें, एंड आई थिंक दैट इज़ द ईज़ी पार्ट। आपका काम बहुत आसान हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट टू फोकस ओनली ऑन द इंटरप्रिटेशन। अब बहुत सारे लोग ऐसे को मुश्किल इसलिए भी समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने मेमोरी अब वोकैबुलरी मेमोराइज करनी है। तो माय मैसेज टू देम इज़ कि डोंट डू दैट। डोंट मेमोराइज वोकैबुलरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे, क्योंकि कई दफ़ा आप फिर उस तरह से अल्फाज का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो डोंट डू दैट, जस्ट फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग एंड दैट इज़ द ईजी पार्ट। किसी भी टॉपिक को इंटरप्रेट करने की एक्सरसाइज ये है कि आप सिंपल उसके बारे में सोचें और देखें कि इसमें एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू डिस्कस दैट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स और विद योर मेंटोर्स और विद योर टीचर्स, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जब आपके सामने कोई टॉपिक आए तो आप उसको सही से समझ सको, और जब सही से समझ सकोगे तो उसको सही से अपने ऐसे में एनालाइज कर सकोगे, एंड दैट इज़ ऑल दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड ऑफ यू। सो आई होप ऐसे के बारे में आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन्स हैं या जो डर है वो निकल जाए। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज राइट देम इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम either at on the spot या towards the end. So your questions are always welcome, and in fact I think कि questions के ज़रिए बेहतर एक interactive approach हो सकती है towards the session, and I think that would be beneficial in a much better way. So anyways, so we've talked about the essay. I think that is the most crucial part of any CSS exam. उसके बाद आ जाती है आपकी प्रेसी। कंपोजिशन वाले पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि उसको किस तरह से डील करना है। तो मेरी हमेशा से एडवाइस यही रही है कि कंपोजिशन वाले पेपर में द ओनली थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेसी। और प्रेसी इज़ नॉट रॉकेट साइंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ने के और बुक रीडिंग के आदी हैं तो फिर तो प्रेसी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू, बट इवन इफ़ यू आर नॉट अ हैबिचुअल रीडर, so there are ways in which you can deal with the Prezi very easily. I think the key that everyone should focus on while attempting any Prezi is that it's all a matter of practice. So the more you practice and the more you work on your Prezi writing skills, the better you will get at it. So practice and practice is the only way you can ace this part of the paper. इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन हैं जैसे synonyms, antonyms और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, बहुत सारे टीचर्स की अपनी-अपनी अप्रोच, एंड ऑल ऑफ दोज़ अप्रोचेज़ आर करेक्ट। सो आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेसी के ऊपर आप लोग सारे ज़रूर ध्यान दें। प्रेसी के ऊपर काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको इसका फ़ायदा हो जाता है। व्हेन यू लर्न टू समराइज़ द आइडियाज़
एंड व्हेन यू लर्न टू रीड प्रॉपरली, क्योंकि देखिए प्रेसी अटेम्प्ट करने के लिए यू शुड बी एबल टू रीड, एंड व्हेन यू आर एबल टू रीड देन दैट हेल्प्स यू नॉट जस्ट इन प्रेसी बट ऑल्सो इन कॉम्प्रीहेंशन। सो प्रेसी के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप ज़रूर उसके ऊपर टाइम दें, प्रैक्टिस करें, एंड आई थिंक यू विल बी फाइन विद इट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइंस पर। जनरल साइंस के ऊपर जो मेरी अप्रोच रही थी वो यही थी कि यू शुड प्राइमरीली फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट यू हैव वन बुक। कोई भी किताब उठा लें जनरल साइंस की मार्केट में जो भी अवेलेबल है, और उसके साथ साथ इंटरनेट से एडिशनल नोट्स ज़रूर बनाएं, स्पेशली फॉर टॉपिक्स जो कि किताबों में सही से कवर नहीं हुए। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू कैन गो ऑनलाइन एंड मेक योर ओन नोट्स। ऑनलाइन नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यू आर एबल टू get information that other people might not have, and when you write that information in the paper, then that sets you apart from the other candidates. So make sure that you make notes from an independent source as well. I think that goes a long way in setting you apart. साइंस के लिए एक और एडवाइस जो बहुत ज़्यादा दी जाती है वो ये है कि आपने हमेशा डायग्राम ज़रूर बनाने, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। डायग्राम्स बनाना साइंस में ख़ास तौर पे ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एक तो इलस्ट्रेशन हो जाती है आपके आइडियाज़ की, बट ऑल्सो इट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल टच टू इट। सो मेक श्योर दैट यू मेक डायग्राम्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। साइंस के बाद करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स एक और दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। मेरा मैसेज फिर वही होगा कि डोंट मेक दिस सोर्स ऑफ टेंशन फॉर यू। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट्री है, इन द सेंस कि जब आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो बड़ी हद तक करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी हो रही होगी साथ साथ, और जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपके पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी भी हो रही है। सो डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि आपको हर चीज़ नहीं पता। हम सारे जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो a lot of us don't have a lot of knowledge and that is perfectly fine. Targeted approach के ज़रिए you can always make up for any weaknesses that you have before starting the preparation. uh, मेरी हर एक एडवाइस यही होती है कि जब भी आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करना चाहें तो मेक श्योर दैट इट इज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। सो फॉर एग्जांपल नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी शुरू करें, और करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करें, क्योंकि देखें करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इवॉल्व होता रहता है। जो अफेयर्स इस वक्त दुनिया में आज हो रहे हैं, जो इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं, जनवरी में हो रहे हैं, फेब में हो रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं, हो सकता है अगले साल फेब 2022 तक वो तमाम चीज़ें बैकग्राउंड में चली गई और कोई नई चीज़ें सामने आ गई हों। सो इसलिए उसकी एडवाइजेबल यही है कि तैयारी आप जितना डिले कर सकते हैं करें, डू इट टुवर्ड्स द एंड। द ओनली थिंग दैट यू शुड बी डूइंग फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स बोथ is कि you have to make sure that you read the newspaper daily. न्यूज़पेपर जहाँ पर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करता है उस वहीं पर आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज इम्प्रूव करता है। आपकी नॉलेज जब आप 6-7 महीने लगातार अखबार पढ़ते हैं तो योर नॉलेज लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव्स, सो दैट हेल्प्स यू to have sort of basic level knowledge. So think that the reading of newspapers is sort of like preparing for the current affairs or Pakistan affairs exam. So that is the first thing that you need to do. नंबर टू ये कि जब आप करंट अफेयर्स की या पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करने बैठें तो सामने टॉपिक्स की लिस्ट बना लें। 20-30-40 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी आप लिस्ट बनाएं, एंड देन डू योर ओन रिसर्च। I don't think it is very advisable to rely on any published books. उसका पब्लिश बुक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपकी जो रिसर्च है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, सो यू कैन अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम ऑन रिसर्च। बट उसमें ये ड्रॉबैक है कि यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो किताब में लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड जब आप अपनी रिसर्च करते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है रादर देन यू यूज़ अ बुक। तो उसमें आपको नॉलेज तो मिल जाएगी लेकिन इट वुडंट बी, यू वुडंट हैव अ वेरी डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग। तो मेरी एडवाइस ये है कि किताबें बेशक कंसल्ट करें लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो जो आपने 20-30-40 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है फॉर करंट अफेयर्स एंड फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, उसके ऊपर इंटरनेट पे जाएं ऑनलाइन और वहाँ से आप ज़रूर स्टडी करें उनको और उसके ऊपर नोट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं जहाँ पॉसिबल हो।
आई थिंक इस अप्रोच से आप पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स में एक और एडिशनल चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि प्री पार्टीशन एरा जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इन द सेंस कि प्री पार्टीशन एरा बड़ा लिमिटेड सा है, उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, और 2 या 3 क्वेश्चंस प्री पार्टीशन एरा पे ज़रूर आते हैं। सो अगर आप प्री पार्टीशन एरा अपना प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही आते होंगे, तो दैट विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन एरा को निगलेक्ट ना करें। बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, दे थिंक दैट इट्स नॉट वेरी हाई स्कोरिंग, बट आई डिसएग्री। आई थिंक प्री पार्टीशन एरा कैन फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। उसकी तैयारी बड़ी लिमिटेड सी है, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टॉपिक्स टू वर्क ऑन। उसमें सिलेबस डिफाइंड है, तो प्री पार्टीशन एरा को ज़रूर प्रिपेयर करें। आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू। राइट। सो वी हैव डन पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। सेम गोज़ फॉर इस्लामियात। इस्लामियात के ऊपर भी मार्केट में किताबें जो भी अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें। आई रियली कांट से कि किसी एक किताब पे फोकस किया जाए, देयर सो मेनी गुड बुक्स इन द मार्केट, लेकिन अ जनरल रूल ऑफ थंब फॉर एनी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी किताब यूज़ करनी चाहिए। तो मेरी एडवाइस ये है कि किताबें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, लेकिन आपने किसी एक किताब पर रिलाई नहीं करना। आप जब तैयारी कर रहे हैं, जब नोट्स बना रहे हैं, तो सिलेबस को सामने ज़रूर रखें और ये देखते जाएं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि किताब में सही से प्रिपेयर नहीं हुए हुए, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शायद एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो उन टॉपिक्स को हाईलाइट करके फिर उनके अलग से नोट्स ज़रूर बनाएं इंटरनेट पे जाके। आई थिंक इंटरनेट इज़ एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर एवरीवन। आप इंटरनेट पे ज़रूर जाएं, और ये बात सिर्फ इस्लामियात के लिए नहीं हो रही, ये बात पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, साइंस, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज़ के लिए हो रही है। सो मेक श्योर कि आप इंटरनेट से ज़रूर हेल्प लें, इंटरनेट से अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। जब अपने अपने नोट्स बनाते हैं तो उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल की होती है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया। दूसरा ये कि आपकी नॉलेज जो है वो क्वालिटी वो बड़ी यूनिक होती है। आपको ऐसी चीज़ें आपके पास नॉलेज में होती हैं जो कि शायद बाकी एस्पिरेंट्स के पास ना हो, एंड दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। So this is a very important and a general rule of thumb for every participant and every aspirant कि किसी एक किताब पे रिलाई ना करें, मुख्तलिफ किताबों पे फोकस करें, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि यू हैव अ वेरी वास्ट सेट ऑफ नॉलेज। इंटरनेट पे ज़रूर जाके वहाँ से रिसर्च करें। आई थिंक इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स, रादर देन बाइंग 6 और 7 बुक्स। किसी एक किताब को उठाएं और फिर बाकी जो तैयारी है वो इंटरनेट से ऑनलाइन करें। अब दिस वाज द डिस्कशन ऑन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। थोड़ा सा मैंने आपको उसका ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया। अब आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि हमें ऑप्शनल्स कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और किस तरह के ऑप्शनल्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अ, लेकिन ऑप्शनल्स के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऑप्शनल्स ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो कि स्कोरिंग ट्रेंड को मद्देनज़र रख के सेलेक्ट किए जाएँ। एक स्कोरिंग ट्रेंड से मुराद ये होता है कि अगर आप सीएसएस के पिछले 5 साल के पेपर्स या पिछले 5 साल की डीएमसीज उठाएं, तो you'll नोटिस कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्कोरिंग बहुत लो रही है, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्कोरिंग बड़ी अच्छी रही है। तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक्सट्रैपोलेट करते हैं कि अगले साल हमें कौन सा टॉपिक रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड अप्रोच, लेकिन आई थिंक सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड पे रिलाई करना भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर वन ये कि स्कोरिंग ट्रेंड इज़ वेरी इरेटिक इन इन अ लॉट ऑफ केसेस। बहुत सारे केसेस में एक साल उस किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो अगले साल नंबर बुरे आएंगे। और फिर ये कि स्कोरिंग ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग। सो जब रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो स्कोरिंग ट्रेंड तब भी लोग ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जब फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब भी लोग स्कोरिंग ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक साल में या एक साइकिल में 2 दफ़ा जब स्कोरिंग ट्रेंड आपके सामने आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा स्कोरिंग ट्रेंड फॉलो करना है। सो स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर जनरल किस्म की नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट यू गाइस शुड बी कंसिडरिंग। स्कोरिंग ट्रेंड में दो ऑप्शनल्स की सिलेक्शन में स्कोरिंग ट्रेंड के अलावा दो और एस्पेक्ट्स हैं।
जिस पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक तो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ने डिग्री की है बिज़नेस में, एमबीबीए किया है या आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, तो मेरी एडवाइस ये होती है कि उसमें फिर आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एज़ एन ऑप्शनल ज़रूर उठाना चाहिए, रादर देन गो फॉर आईआर या पॉल साइ। उसकी वजह ये है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी है, तो क्यों ना उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। तो मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड उससे अलाइंड हो। नंबर 2 ये कि आपका जब बैकग्राउंड अलाइंड होता है तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट सिर्फ स्कोरिंग पॉइंट की बेस पे उठा लेते हैं बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन इट। तो उससे नुकसान ये होता है कि एक तो आपको तैयारी में टाइम ज़्यादा लगता है, नंबर 1। दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है उसको समझने में। तो अपना इंटरेस्ट और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़रूर देखें जब भी आप डिसाइड करें कि हमने कौन सा ऑप्शनल हमने सेलेक्ट करना है। और तीसरा फैक्टर जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि उस सब्जेक्ट की सिलेबस की लेंथ कितनी है। अगर तो आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया है जिसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है लेकिन उसकी सिलेबस लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो है ना रिकैलिब्रेट करनी है। आपने देखना है कि यार इस सब्जेक्ट में तो मुझे मे बी 2 महीने लग रहे हैं तैयारी करते हुए और बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे मे बी 15-15, 20-20 दिन में तैयारी हो रही है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एज़ वेल कि क्या मैं ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ? ठीक है, इसमें मेरा शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है और इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है, लेकिन इसमें तैयारी में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर दोज़ पीपल हू स्टार्ट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। जो लोग मे बी अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट करते हैं या नवंबर में तैयारी स्टार्ट करते हैं, उनको ये कंसिडर ख़ास तौर पे करना चाहिए कि क्या हम ऐसा सब्जेक्ट उठाने को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। तो इसीलिए आपने अपने ऑप्शनल्स को सेलेक्ट बड़ा ध्यान से करना है। और ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो एडवाइस है वो जो मैं आई थिंक जो मैंने भी फॉलो की थी वो ये थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिलेबस देखें। आपके सीनियर्स, आपके दोस्त, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे, लेकिन आपने अपनी जो है ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करनी है। तो इफ़ समबडी रिकमेंड्स कि आपने एंथ्रोपोलॉजी उठाना है, तो मेक श्योर कि यू गो होम एंड यू ओपन द सिलेबस एंड ट्राई टू सी कि एंथ्रोपोलॉजी में एग्जैक्टली है क्या, उसमें टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं, आइडियाज़ किस किस्म के हैं, उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस सब्जेक्ट की किताबें कौन-सी और किस किस्म की किताबें। जब आप ये अपना होमवर्क कर लेंगे उसके बाद आपने उसके पास्ट पेपर्स देखने हैं। पास्ट पेपर्स में जाएँ, देखें कि वहाँ पर किस किस्म की बातें हो रही हैं, कौन स क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल कितना है और जनरली उसके बारे में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे क्या डेवलप होगी। तीसरी चीज़ ये कि एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स जो है ना वो ज़रूर देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एफपीएससी की वेबसाइट पे एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स आई थिंक 2018 तक की पड़ी हुई है। आप वो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट ज़रूर देखें और देखें कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने उठाया उसके ऊपर एग्ज़ामिनर का क्या ओपिनियन है। एग्ज़ामिनर उसके बारे में क्या ख़्याल रखता है कि लोगों ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपने चौथी चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपने किसी अपने ऐसे सीनियर के पास जाना है जिसने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो जिसने वो सब्जेक्ट उठाया हुआ है। उससे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लें, आई थिंक ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। मेरे साथ पर्सनली भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो शुरू में आई प्लान टू टेक आई लॉ, इंटरनेशनल लॉ मैंने उठाने का सोचा था। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पर टाइम भी शॉर्ट था, वी वर ऑल वेरी नर्वस कि तैयारी स्लो जा रही है और बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड वाज़ आई आस्क्ड अ सीनियर ऑफ माइन, जो उस टाइम पर एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे थे एंड ही अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम विद मी। मैंने उनसे पूछा कि आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है तो कैसा आपको सब्जेक्ट लगा? एंड ही एडवाइस्ड मी कि इंटरनेशनल लॉ ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है, इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और उससे पहले मेरा तो ये प्लान था कि आई वुड बी टेकिंग इंटरनेशनल लॉ, बट आई डिड नॉट। आई चेंज्ड माय माइंड आफ्टर टॉकिंग टू माय सीनियर। इंस्टेड आई टुक क्रिमिनोलॉजी। और एंड आई थिंक दैट प्लेड अ ह्यूज रोल, क्योंकि हमारे टाइम पे इंटरनेशनल लॉ में मार्किंग बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हुई थी। So this is how you try to decide what subjects to take, what optionals to take, and these are some of the 3 or 4 things that are a general advice for you guys. अब मैंने 4 चीज़ें आपको गिनवा दी हैं एंड सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग यार इतनी तैयारी, इतने स्टेप्स कौन करे एंड इतने
खज्जल ख्वारी कौन करे, बट आई थिंक इसमें से अगर आप एक दो स्टेप्स भी कर लें तो आई थिंक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप्ड हो जाएगी, आप आपका जो डिसीजन होगा वो बड़ा इन्फॉर्म डिसीजन होगा। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग जो हैं एक जो भी डिसीजन है वो इन्फॉर्म डिसीजन है, क्योंकि आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट विल डिटरमिन योर करियर पाथ एंड योर सक्सेस। कोई एक गलत ऑप्शन अगर आपने उठा लिया तो दैट वुड इधर मीन कि आपके मार्क्स बहुत कम होंगे, आपकी एलोकेशन नहीं होगी, और अगर एलोकेशन होगी तो शायद आपके डिज़ायर्ड ग्रुप में ना हो। तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि जहाँ हद तक आप ड्यू डिलिजेंस कर सकें ज़रूर करें। ऑप्शनल स्टम की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत सोच समझ के करना बहुत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So we planned the session for about an hour. Uh, if there are any questions, I'd be happy to take them at this point in time. And if not, then we will just proceed with some other ideas that I wanted to share with regards to the preparation of the exam. Let me just wait for a moment if there are questions. Okay, हाँ काफ़ी सारे questions आए हैं. Let me see. इस सलमान इस्लामिया था पेपर इंग्लिश और उर्दू. आई थिंक रिसोर्सेज तो ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश की चूँकि रिसोर्सेज भी आपके पास होंगी तो माय एडवाइस इज़ कि आप इस्लामियात इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, बट इफ़ यू फील कि उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उर्दू इज़ ऑल्सो फाइन. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू इन टेकिंग द सब्जेक्ट इन ईदर ऑफ द टू. मेरी सब्जेक्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वो ये थी कि देखें, जैसा मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक किताब प्राइमरी जहाँ से आप 70% अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लें, और जो 30% है वो आप इंटरनेट से देख लें. आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड अप्रोच फॉर ऑल ऑफ यू. आप उस अप्रोच को फॉलो करके आपकी तैयारी बड़ी होलिस्टिक और बड़ी यूनिक हो सकती है, आपका नॉलेज लेवल यूनिक होगा. सो दैट वाज माय अप्रोच फॉर एवरी सब्जेक्ट. आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू गो अलॉन्ग वे. सीएसएस में बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसकी जो सारी डिटेल्स हैं अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद हैं. बीए आई थिंक अलाउड है, आई एम नॉट श्योर. व्हाट आई रिमेंबर वाज कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो आप ज़रूर चेक कर लें वहाँ से. आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट इट गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट. हाउ टू राइट एक्यूरेट इंग्लिश. अच्छा, इंग्लिश के लिए मेरी जनरल एडवाइस ये है कि आप लोग एक तो राइटिंग शुरू करें. ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें, एक एक दो दो पैराग्राफ्स क्रिएटिव राइटिंग के कुछ भी किसी भी टॉपिक पे ज़रूर लिखें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. साथ ही साथ जितना आप पढ़ेंगे वो भी फ़ायदेमंद है. अखबार पढ़ने का मकसद सिर्फ एजुकेशन सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, बल्कि आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव करना भी है. So read as much as you can and write as much as you can. I think that will really improve your English expression. Current affairs और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर I've already discussed. Source जो है नंबर वन सोर्स है इंटरनेट. इंटरनेट की is one of the best sources for you guys. अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ एक दो किताबें हैं which I think are very very important for CSS aspirants. एक तो है पाकिस्तान ऑन द क्रॉस रोड्स और समथिंग लाइक दैट. मैं उसका नाम आप लोगों से शेयर कर दूंगा. इट्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड पेपर्स बाय इंटेलेक्चुअल्स ऑफ आवर कंट्री. उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो उसकी वो ज़रूर पढ़ें आप लोग. दूसरा है गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय डॉक्टर इशरत हसन. दैट इज़ अ वेरी गुड बुक टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ द गवर्नेंस इन पाकिस्तान. तो ये दो किताबें आप लोग ज़रूर पढ़ें. उसके अलावा हामिद खान साहब की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. वो किताब ज़रूर पढ़ें. ये तीन किताबें ऐसी हैं जो कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक डेवलप कर देती हैं, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करती है बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में. फॉर एग्जांपल एनएफसी अवार्ड के ऊपर जब आप स्टडी कर रहे होंगे इन पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एनएफसी अवार्ड के पीछे क्या बैकड्रॉप है. 18th अमेंडमेंट को जब आप पढ़ रहे होंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 18th अमेंडमेंट का पर्पस क्या था, उसके नताइज क्या थे, एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड.
तो ये जो किताबें हैं, दे विल सॉर्ट ऑफ बिल्ड योर बेसिस टू डील विद मोर इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स व्हेन यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। ऐसे की आउटलाइन के ऊपर जो क्वेश्चन है, आई थिंक there's a there's many patterns that are being taught in various academies and by various teachers, and I think सारे ही outline लिखने के patterns सही हैं. What matters, again I will focus on this, is के how you interpret the topic. That is very important as compared to how you make the outline. देखिए outline तो आपका, it's your way of expressing whatever you've understood. But if you have not correctly understood and interpreted the topic, then no matter how fancy an outline you make, it will not help you. तो outline पे ज़रूर focus करें, but try to interpret the topic in the right way. And the question कि how to make an outline and essay, that's a whole field, and I think the time does not permit कि हम यहाँ पर outline को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकें. How to write accurate English. Asha, I've already covered this. How to make notes and to cover syllabus. How to make notes, I think notes के ऊपर मेरी एडवाइस है कि जैसा मैंने बताया, इंटरनेट से रिसर्च जरूर करें. Bullet points are always helpful in memorization and in sort of uh, condensing knowledge. And I think it really summarizes all your points very well. So make bullet points rather than making paragraphs. Uh, that would be the way forward. Another question is about the ideal structure for an essay. Uh, I really don't understand the ideal structure, Samrat. So basically, you start off with an introduction, and then you give a brief background of the topic, and then you list your main arguments, and then you put forward your recommendations, and then you conclude. तो ये जनरल सा एक ऐसे का एक पैटर्न है, जनरल सा एक पैटर्न का फॉर्मेट, ऐसे का फॉर्मेट है. ऑफ कोर्स इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, इसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फॉर योर ऐसे. इस अप्रोच से मैं एग्री नहीं करता कि वी शुड सॉर्ट ऑफ कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन ऑन ऐसे. उसकी वजह यह है कि देखें, आप जितने मर्जी टॉपिक्स के ऊपर अपना अलग से एक नॉलेज बैंक बना लें, रजिस्टर भर लें, मटेरियल कलेक्ट कर लें, बट व्हाट इफ पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं की हुई. और दूसरी बात ये कि ये जो मटेरियल कलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आपका इसमें टाइम बहुत लगता है. अगर आप अखबार रोज़ा हर हर रोज़ पढ़ रहे हैं और कोई अच्छे मैगजीन्स पढ़ रहे हैं और आपने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आई थिंक आपके पास इतना मटेरियल ज़रूर आ जाता है कि आप ऐसे में उस तमाम मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो माय एडवाइस टू यू इज़ कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो डोंट ट्राई टू गो आउटवर्ड्स फॉर नॉलेज. ट्राई टू सी कि आपके पास अपना नॉलेज क्या है. आपने अगर एंथ्रोपोलॉजी में जो आइडियाज़ पढ़े हैं, क्रिमिनोलॉजी में जो आइडियाज़ पढ़े हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में जो आइडियाज़ पढ़े हैं, उन आइडियाज़ को अपने ऐसे पे अप्लाई करने की कोशिश करें. आई थिंक दैट विल गो अ मच लॉन्गर वे इन हेल्पिंग यू प्रिपेयर फॉर द ऐसे इन अ पर्टिकुलर वे. अगर आप मटेरियल कलेक्ट करना चाहते हैं, ज़रूर करें, बट आई थिंक दैट विल टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम एंड इट माइट नॉट बी हाईली एडवाइजेबल. Essay writing, again, Muhammad Hussain, I think essay writing is one of the most important part of the CSS. So I would advise that you focus, you put all your energies in it, and inshallah you'll be able to do it. जहाँ तक सवाल है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड किस हद तक मैटर करता है, आई थिंक उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप, अगर आप इंजीनियर हैं या आपने एमएस किया है इन अ सर्टेन फील्ड, तो आप उसके हिसाब से अपने ऑप्शनल्स सेलेक्ट करें. जब आप अपने ऑप्शनल सही से सेलेक्ट करेंगे, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा. तो आई डोंट थिंक कि किसी खास यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है या किसी खास एजुकेशनल बैकग्राउंड से आना ज़रूरी है. व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने जो पढ़ा है, जो आपकी डिग्री है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट इज़, आई थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि शुड वी गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट किया था क्योंकि मेरी डिग्री जो थी वो चूंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में थी. सो आई वाज एबल टू स्कोर वेल इन इट, क्योंकि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 5 डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी स्टडी इन आवर डिग्री. तो इसीलिए मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया.
उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें आप फाइनेंस वाला जो पोर्शन है उस पे ज़रूर आप टाइम दें, क्योंकि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव पार्ट एंड इट हेल्प्स यू स्कोर वेल। हमारे टाइम पे रेशोज़ के ऊपर सवाल आया था, दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड फाइनेंस दे माइट नो। और रेशोज़ का सवाल था, इट वाज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। तो इसीलिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड। द ओनली चैलेंज विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कि उसके अंदर ना उस सिलेबस की लेंथ बहुत ज़्यादा है। आपको 4 या 5 डिफरेंट टॉप सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So that's the only drawback. But if you are comfortable and if you have confidence in your degree, then I think business administration is definitely the way forward. And I think you should all go for business administration. Notes making is not a very complex idea, Shahrukh. लेकिन notes making में you don't have to think कि जो लोग अ, तैयारी कर रहे हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के कोई नोट्स बनाने हैं, कोई ख़ास टेक्निक है। सिंपल टेक्निक जो है इट्स वेरी वेरी सिंपल, जस्ट टेक द बुक दैट यू रीडिंग एंड ट्राई टू समराइज इट by making bullet points. That's it. That's all you need to do when you're making notes. The same goes for when you're consulting online sources. अगर आप कोई केस स्टडी पढ़ रहे हैं, कोई अगर आप अखबार से कोई चीज़ आप उसके नोट्स बना रहे हैं, तो all you have to do is sort of summarize it in bullet points form. Take the more important information and write bullet points. That's all you need to do when you're making notes. Salman, I have no idea about the mercantile law, उसका scoring trend क्या है. But I've heard कि a lot of people who are from the business background they opt for it. Again, my advice would be कि आप उसका scoring trend के अलावा उसका जो syllabus है वो ज़रूर देखें, उसके past paper ज़रूर देखें and then make your decision. Um, as far as the English part is concerned, कि at what stage are we sure that we have achieved a certain level of English that we can appear for CSS? I think when you read your own writing, जो भी आपने लिखा है essay या जो भी चीज़ आपने लिखी है, if you read it and if you find no grammatical errors in it, then I think you're ready to go for it. I think that is the stage that is the benchmark that you should have when deciding whether you're ready for the CSS attempt or not. And again, you don't have to be perfect in grammar, but make sure that you don't make very silly mistakes or mistakes that show that you don't have an understanding of ग्रामर। आई थिंक अगर उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दो तो ज़रा जो एडवांस लेवल की ग्रामेटिकल एरर्स हैं अगर आप वो कमिट कर भी लें तो इतना कोई इशू नहीं होता, बट डोंट मेक बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू know. Another question is about the combination of criminology and gender studies. uh, I took both of these optionals and my experience is that they don't have much of a connection with each other. तो और दूसरा ये कि दोनों थियोरेटिकल टाइप के सब्जेक्ट्स हैं और इंटरेस्टिंग हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद इट तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शनल्स जो हैं ऑप्ट किए जा सकते हैं। आई थिंक दे आर गुड ऑप्शन इन माय ओपिनियन। कैन द पीपल विद द बीबीए डिग्रीज अप्लाई फॉर सीएसएस? यस, दे कैन। लॉ करके सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक डिग्री की कोई उसमें वो नहीं है, hindrance नहीं है। You should just try to focus on making sure that the basic requirements are met. एफपीएससी की वेबसाइट पे वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं एंड यू कैन ऑलवेज एक्सेस देम। इसके अलावा हाँ, so there's a question about the sources on the internet and what are some of the authentic sources that you can use. So one of the tricks that I learned while preparing for this exam was कि whenever you write about any topic, so for example आप लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, अगर आप इसके ऊपर सिंपल ये वर्ड्स लिखेंगे ना गूगल में तो आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि उसमें एजेंडा बेस्ड इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, स्पेशली जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस पर आपके सामने जो सोर्सेज आएंगी वो मोस्टली इंडियन ओरिजिन की होंगी and that is the information that you need to avoid क्योंकि obviously they're not that's not the correct piece of information. So what you have to do is
जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको आप लिखो और उसके एंड पे आपने लिखना है PDF। जब आप PDF लिखते हैं तो आपके सामने रिसर्च जो रिजल्ट होता है उसमें आपके पास केस स्टडीज आती हैं। वो केस स्टडीज यूजुअली एकेडमिक होती हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेरीफाइड होती है। उसके अंदर जो एनालिसिस होता है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और समथिंग दैट सॉर्ट। तो जो भी टॉपिक रिसर्च कर रहे हो उसके एंड में PDF ज़रूर लिखो। When you write that you get case studies and case studies में जो knowledge है obviously उसका content बहुत बेहतर quality का है and that can go a long way in helping you prepare some good information for your optionals and for any subject in particular. तो किसी एक वेबसाइट का तो मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, अ, सारी वेबसाइट्स बेनिफिशियल हैं। अलबत्ता इफ़ यू आर लुकिंग फॉर केस स्टडीज़ तो 2 वेबसाइट्स हैं। एक है इप्री पाक, IPRIPAK, और दूसरा है ISSI। ये 2 थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में एंड दे पब्लिश case studies on geostrategic matters and matters related to Pakistan and current affairs. So पाकिस्तान और करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये तो वेबसाइट्स जो हैं ये भी बड़ी हद तक बेनिफिशियल हैं। इनमें भी बहुत दफ़ा रेलेवेंट टॉपिक्स आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो आई वांटेड टू स्टडी फाटा मर्जर। तो फाटा मर्जर के ऊपर इनमें से किसी एक थिंक टैंक ने बहुत अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए थे। सो आई यूज दैट टू स्टडी द फाटा मर्जर। उसके अलावा 18th अमेंडमेंट के ऊपर इप्री पाक ने IPRIPAK, आई वंस अगेन रिपीट, IPRIPAK, इन्होंने बहुत अच्छी एक पूरा कंपेंडियम पब्लिश किया था ऑन 18th अमेंडमेंट। तो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दैट तो वो भी आप वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल इज़ कि ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपकी जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी जो नॉलेज मिल रहा है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू यूज़ इट। बिजनेस एड की जो सोर्सेज हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। आई थिंक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो किताबें हैं वो सारी वही हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है। जब आप सिलेबस में जाएँ तो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए किताबें मेंशन की हुई हैं। उनमें से एक ही किताब आप उठाते जाएँ और वो पढ़ लें। यू विल बी फाइन विद इट। यू डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ गो फॉर एनी अदर बुक। जो भी सिलेबस के अंदर बुक लिस्ट में मेंशन्ड है, वो किताबें यूज़ करें। उनमें से कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर एक पोर्शन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट पोर्शन के लिए उन्होंने 3 या 4 किताबें मेंशन की हुई। सो यू जस्ट नीड टू टेक वन बुक एंड यू विल बी फाइन विद इट। जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसी बुक उठाएँ जो कि आपके सिलेबस से कॉरेस्पॉन्ड करती है। ऐसा ना हो कि ऐसी किताब उठा लो जिसके अंदर सिलेबस का कोई ज़िक्र ही ना हो। तो मेक श्योर you keep going into the syllabus and then buy the books that you need. That way you'll be able to spend your money wisely. अच्छा, स्केड्यूल ऑफ प्रिपरेशन इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। आई थिंक इफेक्टिवली अगर आप पढ़ें फॉर अबाउट 5 or 6 hours, आई थिंक दैट इज़ अ गुड अप्रोच। अगेन हर बंदे की एक डिफरेंट स्टडी पैटर्न है, हर बंदे का एक डिफरेंट स्केड्यूल है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कुछ लोग रात को जाग के पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। कुछ लोग सुबह में बेहतर पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक किसी और का स्केड्यूल फॉलो करने के बजाय यू शुड नो योर ओन स्ट्रेंथ्स। If you feel better studying in the night, then you should do that. If you feel better studying in the morning, then by all means study at the wake of dawn. But make sure that you do what suits you. बहुत सारे लोग जॉब के साथ CSS की तैयारी करते हैं तो उनका तो स्केड्यूल ही डिफरेंट होता है और उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। सो ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं एंड देन यू शुड प्रिपेयर योर स्केड्यूल। मेरे लिए ये था कि चूँकि मैं उस टाइम पर मैं जॉब नहीं कर रहा था तैयारी के वक़्त, तो आई यूज्ड टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एट माय हैंड। तो उसमें आई यूज्ड टू स्टडी इफेक्टिवली। जो मेरी एक्चुअल स्टडी थी वो वाज़ अबाउट 5 or 6 hours, नॉट मोर देन दैट ईच डे। तो आई थिंक इतने में इफ़ यू स्टडी, इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों को रिक्वायर्ड होता है और कुछ लोग इससे कम टाइम में भी तैयारी कर लेते हैं। सो अगेन मेरा जो 5 to 6 hours का बेंचमार्क, इट्स नॉट आइडियल। If you feel that you can study more, then by all means you can. You should study more if you want. अगर आपको लगता है कि आप थोड़े टाइम में भी अच्छी तरह आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, you can reduce this time as well. Ultimately आपने जो अपने सामने गोल रखना है वो ये है कि you have to be done with all of your optionals and all of your compulsories by November. ताकि नवंबर के बाद you have enough time for preparation, for revision,
I think that should be the goal. So make sure that you are done with all of your subjects by mid-November, and then after that you begin revising and studying your Pakistan affairs and current affairs. Pakistan affairs और current affairs आखिरी के लिए छोड़ दो, और नवंबर तक बाकी तमाम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लो। प्रेसी के ऊपर और ऐसे के ऊपर मैं काफ़ी आई थिंक आई डिस्कस्ड कि ऐसे के ऊपर व्हाट आर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। देयर इज ओनली वन ट्रिक फॉर ऐसे, एंड दैट इज कि यू शुड ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर रेलेवेंट। जो भी टॉपिक पूछ रहा है आपसे, आपने उसके ऊपर बात करनी है। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग। तो बीइंग रेलेवेंट एंड बीइंग प्रिसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप ऐसे लिखें इट शुड बी वेरी रेलेवेंट। ऐसे किसी ऐसी चीज़ पे ना लिखें जो कि उसने पूछा ही नहीं। कई लोग एक टॉपिक था टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। ये एक टॉपिक आया था कुछ साल पहले ऐसे में। तो उसमें लोगों ने टेररिज्म के ऊपर ऐसे लिख दिया कि टेररिज्म के नुकसानात, टेररिज्म के फ़ायदे वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। द की टर्म इन दैट टॉपिक वाज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी कि अपना किया हुआ। सो बेसिकली व्हाट द एग्जामिनर वांटेड वाज कि आप ये बताएं कि टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है हाउ इज़ इट a monster of our own making? How is it a mistake of our own and not someone else's mistake? So that was the key here. But instead, a lot of people wrote about how terrorism is a problem and how terrorism के नुकसानात क्या हैं, terrorism क्यों होती है, terrorism क्या है। That is not what is required. उसमें आपने बताना है कि हमने ऐसे क्या steps लिए थे जिसकी वजह से terrorism आज पाकिस्तान में हो रही है। That's all. That's all you needed in that essay. सो अगेन बैक टू माय पॉइंट कि आपने ऐसे का टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपने देखना है कि उसमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट दे आर आस्किंग फॉर, एंड देन गो अहेड विद इट। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। प्रेसी के लिए मेरी एडवाइस है कि जितनी प्रैक्टिस है ज़रूर करें। 1975 तक के तो प्रेसी पैसेजेस अवेलेबल हैं, वो प्रैक्टिस करें जहाँ तक पॉसिबल है। आई थिंक जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें बेहतर होते जाते हैं। अच्छा, इस न्यूज़पेपर के बारे में आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट, आपने पूरा अखबार नहीं पढ़ना। आई थिंक पूरा अखबार पढ़ने का ना तो टाइम होता है और ना उसका कोई ख़ास फ़ायदा है। देयर आर 3 और 4 थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन व्हेन यू आर स्टडीइंग द न्यूज़पेपर। नंबर 1, जो ओपिनियंस हैं, जो ओपेड्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना है। फर्स्ट पेज हेडलाइंस के ऊपर नज़र मार लें और इंटरनेशनल पेज ज़रूर स्टडी करें। ये होगी 3-4 चीज़ें। एक और चीज़ जो है वो है इकोनॉमिक्स वाला पेज। बट इकोनॉमिक्स वाला पेज डॉन का आपने सिर्फ और सिर्फ मंडे को पढ़ना है, क्योंकि बाकी दिनों में उसके अंदर जो नॉलेज होता है दैट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट। लेकिन मंडेज को जो इकोनॉमिक्स वाला बिजनेस वाला पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक बहुत सारे आइडियाज़ आपके सामने पेश करते हैं जो कि इकोनॉमी से रेलिवेंट होते हैं। तो मंडेज को सिर्फ आपने इकोनॉमी वाला बिजनेस वाला सेक्शन पढ़ना है, और बाकी जो 4-5 मैंने आपको बताए हैं वो तो आपने रोज़ाना पढ़ना है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हेयर कि मैंने कौन सी वेबसाइट्स मेंशन की थी। वेबसाइट्स, सो आई मेंशन्ड द बुक्स, सॉरी द वेबसाइट्स जहाँ से आप करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अच्छी केस स्टडीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। आप ये दोनों टर्म्स अगर गूगल पे लिखेंगे तो you'll be rerouted to those websites, and वहाँ से आप जाके ऐसे टॉपिक्स उठा सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी गुड अप्रोच। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो लेट्स वेट फॉर देम। आई थिंक आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम। Yeah, pretty much we're done. So if there are no more questions, I'll take leave now. It was very nice interacting with all of you, and I wish you all the best. You're always welcome to message me asking for any advice, any questions that you have, and I will try to answer them to the best of my abilities. And take care and good luck. All the best. Allah Hafiz.